morning, students. Good morning, sir. I hope you can see the screen which I have just shared. Yes, sir. Okay, good. So we are starting with our second unit, uh, which I discussed last time as well. That we are basically now shall discuss about uh, steam power generation. Now, when we talk about steam power generation, we have to understand that it is not just limited to coal-fired steam power generation. It could be expanded to even nuclear power generation, and it can even expand to what we call solar thermal power plant. Mainly because they utilize the same concept, is to boil the water in a boiler, make it a steam, and hit that pressurized steam to the turbine, and that is why it is a steam power plant. But that steam can be fueled by coal, fueled by nuclear fuel, fueled by biogas, biomass. That can be even fueled by geothermal, and that can even fueled by uh, sun energy, that is solar energy. So there could be any one of them. Presently, in the realm of our syllabus, we have to consider two of them. One is coal-based thermal power plant, and another one is based on nuclear uh, thermal power plant. So let's start with some of the facts in power generation system, and we will slowly uh, graduate to thermal power plant, coal based, and then we will discuss about nuclear based thermal power plant. So some of the facts, although it is a little bit 2 or 3 years old data, uh, I think the first point which I've already discussed, that how energy and development of a nation or economy is directly linked, and how energy is energy has a geopolitical implications. So I'm not going to deliberate much on that, but of course, uh, somebody may Google it and can tell me that what is the installed capacity of India in August 2021. What is the installed capacity? Somebody can Google it and let me know as of today's date. I'm waiting. कोई नहीं है जो बता सके इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? Sir, 1 second. खरीद तो है सब, कोई बताओ कुछ नहीं रहा. सर चेक कर रहे हैं सर एक मिनट. अच्छा, इतनी देर में तो खैर. Sir, 386,888 megawatts. 386 888 megawatts. 888. ठीक है, तो इसका मतलब जब से हमने ये डेटा लिखा है यानी 2017 से लगभग 50,000 मेगावाट की इसमें बढ़ोतरी हुई है पिछले 3 सालों में या 4 सालों में. जुलाई 17 टू now we are in August or September 21. So in 4 years we have gone from 330,000 megawatt to 383
thousand megawatts. So almost 50,000 jump from 4 years. So that is the installed capacity of India. As for the share, it is somewhere around, and I don't think that much of changes would occur in this scenario. But most likely, you can see it that fossil energy is around 70%. However, renewable energy sources are around 30%. This is just to have an idea that in the non-conventional forms, we have thermal energy around 60%, hydro around 15, and then nuclear is around 2.1%. These can change a little bit, maybe 0.1%, 0.5%, or maybe 1% change, but not much change in these shares. The private sector generation share is always already 44%. तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था the privatization has taken a good share in this power sector और इनफैक्ट इंडिया की जो सबसे बड़ी इस वक्त पावर जनरेशन कंपनी है वो पावर जनरेशन प्लांट है I'll just give you the name. It is Mundra Thermal Power Station. It is operated by Adani Power, which is in Mundra, Kutch, Gujarat, and Western region. It's a private, and its capacity is 4,620 megawatt. So there is a good jump in this area. Another important fact considering power generation is that India has the 5th largest generation capacity in the world. US, जापान, चाइना, रशिया के बाद सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेशन होता है वो हिंदुस्तान में होता है. And it consumes about 49% of the total power generated globally. ठीक है, 49%. I don't know about this data. I'm not very sure about this data, the later part of this point. So you better stick to this. That is the 5th largest generation because it has to be a little bit less. It can't be 50% of the total power generation because generation जितना होगा उतना ही consumption भी होगा. It cannot be that. It may be 4.9%. So the average per capita consumption of the electricity in India is estimated to be 1,074 units. However, the world average stands at 2,400 units. Transmission and distribution losses are somewhere around 20 to 30%, and we are the shortage of 9% energy demand and 30% peak demand. Okay, so these are the some important facts considering power generation, not really related to the thermal power plant, but anyway we will come to that. These are some power generation scenarios. Thermal generation. Coal based is 59.1%. However, total thermal is around 67%. Gas based thermal power plant is 7.6 and oil based 0.3. We have hydro, we have nuclear, and we have renewable energy sources as well. Again, it is a 4-year-old data. This is also an old data, where it shows that what is the percentage of unelectrified villages. Now it has been, yani no village has remained unelectrified. Now let's come to our topic, which is thermal power plant. Thermal power plant dominates electrical power generation in India, which are the major contributors to the greenhouse gases. So, in fact, सबसे पहले ही पॉइंट में एक कंसर्न है जो ग्लोबल कंसर्न है और वो है पोल्यूशन एंड thermal based power generation are good contributors, yani have a higher share of contribution to this greenhouse gas effects. So one gas has been mentioned, the carbon dioxide emitted as a product of combustion of fossil fuel is currently responsible for over 60% of the enhanced greenhouse effect. ठीक है, तो ये पावर प्लांट की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का शेयर है वो 60% से ज़्यादा है. So you can understand the issue of what you call
यानी contribution of power generation, thermal power generation to pollution. And if you remember, there is something called Kyoto Protocol. Have you heard about Kyoto Protocol? किसी ने सुना है Kyoto Protocol के बारे में? No, sir. हाँ या ना? नहीं सुना है किसी ने। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है, ग्लोबल प्रोटोकॉल है, और एक ये इन्वायरमेंटल समिट पूरे वर्ल्ड की हुई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा कार्बन एमिट कर सकती है। दिस इज व्हाट दे कॉल कार्बन क्रेडिट। हर कंट्री एक शेयर ऑफ अमाउंट है उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉपुलेशन को देखते हुए, और सबको डिसाइड किया गया, एक कैपिंग लगा दी गई कि आप इससे ज़्यादा कार्बन नहीं यानी धुएं में उड़ा सकते हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्पेशली पावर जनरेशन की वजह से होता है। तो आप समझ सकते हैं 60% पावर जनरेशन नहीं है और बाकी 40% में वो सारी चीज़ें आती हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें फ्यूल कंबशन होता है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। सो इट वुड बी गुड अमाउंट कि इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट आ रहा है वो कहीं ना कहीं थर्मल पावर जनरेशन पे आ रहा है। और क्योंकि थर्मल पावर जनरेशन इज हैविंग अ गुड परसेंटेज ऑफ पावर जनरेशन, और इलेक्ट्रिसिटी इज अ फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। If you want to progress in the world, you got to consume more electricity. If you got to consume more electricity, you got to consume more power, thermal power, because thermal in any way is having dominant share in the power generation. Now, if you got to produce dominant thermal power generation or power from thermal power in dominant sense, then of course you will be contributing to the pollution at the same level, and that is why this has to be capped by carbon credit. आप इससे ज़्यादा पावर कार्बन जनरेट नहीं कर सकते, so डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं थर्मल पावर पे भी आके एक ब्रेक लगता है। तो अब इसको एज ए पॉलिसी मेकर अगर आप देखेंगे तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि अब हम थर्मल पावर से हट के किसी और पावर की तरफ माइग्रेट करें, और अगर नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट असर पड़ेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी इन्वॉल्व विद द थर्मल पावर प्लांट। हम इस शेयर को और बढ़ा भी सकते थे, हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, और आप जानते हैं अच्छा खासा भंडार है कोयले का, लेकिन वो कोयला यानी गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है when we convert into electricity. तो हमारे पास we have the option to create more, but then what is the constraint? The constraint is pollution, and international decision or agreement that we cannot go beyond the capping of carbon credit. ये जरूर होता है कई बार, जैसे कार्बन क्रेडिट मिला है मान लीजिए कि मालदीव्स को, मालदीव भी एक कंट्री है, और उसी तरह से मिला मॉरिशस को और सेशल्स को, और यानी ऐसी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो उतना कार्बन क्रेडिट जितना उनके पास है वो खर्च ही नहीं कर पाते हैं, यानी वो अपनी कैपिंग को नहीं मिल पाते। तो ऐसे में कंट्रीज दूसरे कंट्रीज की कैपिंग खरीद लेती है कि ठीक है मुझे इजाज़त है 100% या 100 ऑफ समथिंग 100 यूनिट्स कार्बन एग्जॉस्ट करने का, और किसी कंट्री को मिला है मान लीजिए 15 या 10, वो बेचारा 2 भी नहीं खर्च कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और हमारा 100 का 100 यूनिट भी एग्जॉस्ट हो जा रहा है। सो ऐसे में मान लीजिए कि किसी के पास 8 बचा हुआ है तो वो 8 खरीदा जाता है इसको, यानी कंट्रीज जो ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं वो खरीद भी लेती हैं कुछ पैसे से, और फिर उसके बराबर यूनिट्स और एक्स्ट्रा वो कर पाती हैं। बट एक कॉन्स्टेंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से थर्मल पावर के एक सीमलेस
यानी एक सीमलेस प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं एक रोक है. इट्स अ हर्डल that you cannot go beyond a particular level of production, and that is why आप देखेंगे कि 70s 80s में जो थर्मल पावर का जो परसेंटेज था वो लगभग 80% था, फिर वो 70% आया, आज जाके वो 59.1%, यानी 3-4 साल पुराना डेटा मैंने आपके सामने रखा, अभी भी लगभग वही होगा या उसमें कुछ कमी ही आई होगी, बढ़ोतरी नहीं हुई होगी. इट इज बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन ऑफ व्हाट वी कॉल ग्रीन हाउस गैसेस reduction or capping of the carbon credit, or because of, in other words we can say, because of Kyoto Protocol. Kyoto is a city in Japan where this agreement has been done. तो ये एक चीज है जो बेसिकली हमें समझना होगा, and that is why we can understand and appreciate the reason why we need to go to the renewable energy sources. These are some of the places where we have our thermal power plants. You might know some of them. दिल्ली में जो लोग हैं वो बदरपुर को जानते हैं, दादरी को जानते हैं, और कानपुर के आसपास जो पन्ती है, a good big power plant there. रोजा, यमुनानगर, रूपनगर, कोटा. Okay. So these are, of course, it's everywhere. साउथ में थोड़ा सा कम है, टुटिकान, कन्याकुमारी, नहीं, कायमकुलम, और ये कुछ जगहों में है चेन्नई के आसपास. लेकिन नॉर्थ में आप देखेंगे इट्स गुड अमाउंट, और स्पेशली ये जो अनपारा है, रिहान, जो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो मीटिंग पॉइंट है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वहाँ पे भी अच्छा खासा अमाउंट है. सो एनीवे, दीज आर सम ऑफ द places where we have thermal power plants. Of course, it is getting more and more, और नई जगह भी आई होंगी इसमें. This is a data in 2014. So last के 5 मेरे ख्याल से 7 सालों में बढ़ा ही होगा यार. Now if we talk about the coal-based thermal power plant, जो कि हमारा टॉपिक है. So India has rich stock of coal as natural resources. Now I want your inputs. कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि अच्छा कोयला है हिंदुस्तान में? अगर कोई एक बता देगा तो दूसरा अगली किसी दूसरे को बताएगा. ठीक है, धनबाद, वेरी गुड. धनबाद में कौन सा है? झरिया धनबाद में है या कोई और है? वो झरिया सर. तो धनबाद में जो है, धनबाद में झरिया. हाँ, झरिया धनबाद में, जो कि बहुत मशहूर है. उसके अलावा भाई आप लोग हर जगह. छत्तीसगढ़. हाँ, छत्तीसगढ़ में किस तरफ? बंगाल में रानीगंज करते हैं. गुड. बंगाल में रानीगंज है, और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में है, और आई थिंक जो उड़ीसा है, उड़ीसा में भी है. आई वांट योर इनपुट्स. आप सब जगह के कंट्री के चारों तरफ से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सो आई होप यू कैन गिव मोर इनपुट्स, ऑल्दो इट इज देयर मेंशन इन द बुक. बस खामोशी छा गई, बस इतना ही है. सिंगरौली. हाँ, सिंगरौली, वेरी गुड. सिंगरौली है, सोनभद्रा है, मैं भी और बता रहा हूँ. सोनभद्रा है, अनपारा मैंने अभी डिस्कस किया, रायचूर कर्नाटका में है. ठीक है, उसी तरह से आपके पास जो है सिंगरौली या सोनभद्रा एक ही आस-पास है, और उमरिया एक. हाँ सर, रानीगंज बताया है, बंगाल में. बोकारो में भी है सर. एनटीपीसी फरक्का. हाँ, एनटीपीसी फरक्का वहाँ कोयला है या वहाँ सिर्फ वो है, पावर प्लांट है? वो नहीं पता सर, लेकिन एनटीपीसी फरक्का में. हाँ, नहीं, वो तो हमने अभी मैप दिखाया है इसमें.
तो इसमें आप देख सकते हैं फरक्का में, हाँ दिखा है, आप गौर से देखिए, मुर्शिदाबाद, फरक्का, कहलगांव, बोंगाईगांव, हुगली, तो ये मेंशन है यहाँ पे। बट व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड नाउ, जो पहला पॉइंट है, इंडिया इज अ रिच स्टॉक ऑफ कोल एंड नेचुरल रिसोर्स। तो कोयले में बहुत सारे पॉइंट्स आए, मेरे ख्याल से झरिया धनबाद आया, रानीगंज वेस्ट बंगाल आया, और सोनभद्रा आया, और भी पॉइंट्स आए थे, मैंने जैसे बोला था आपके सामने, सिंगरौली। सिंगरौली इस सोनभद्रा पास में ही है दोनों सब, रायचूर कर्नाटका, then we have there is a place called Jharsuguda, Odisha, then we have I'm not sure कच्छ में है कि नहीं, अगर कोई उस तरफ का होगा तो बता सकता है। भागलपुर, कोरबा, कोरबा is a place छत्तीसगढ़ में, that is also a good place, good source of coal. Then there is a place called तमनार, रायगढ़, तो ये सब अगेन ये भी छत्तीसगढ़ में ही होता है, रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये वो एरिया है जहाँ पे हमारा कोल का एक रिच एरिया है। इनफैक्ट अगर आप इसको ऐसे देख सकते हैं तो ये एक क्रिसेंट बनाता है, मैप में अगर आप देखेंगे क्रिसेंट बनाता है, बंगाल और उसके बाद झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद आंध्र प्रदेश का नॉर्थर्न एरिया, ये वो सारा एरिया है जो कोल का मेजर सोर्स है। खैर, so what happens in coal based thermal power plant is chemical energy stored in coal is transformed into mechanical energy, and then mechanical energy is transformed into electrical energy. Then coal powder is fired in boiler that converts water into steam at high temperature and pressure. ठीक है, मेरे ख्याल से not much to say into that, कि किस तरह से कोयले को पाउडर के फॉर्म में बना के और उसको जलाया जाता है, जिससे बॉयलर के अंदर रखा हुआ पानी गर्म होता है, जिससे वो स्टीम में बदलता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। दिस स्टीम इज इंजेक्टेड ओवर द ब्लेड ऑफ स्टीम टरबाइन प्राइम मूवर इन कंट्रोल वे। मेरे ख्याल से इमेज है यहाँ पे, अगर आप इसे देखें, कोल्ड स्टोरेज, उसको आपको ले जाना पड़ेगा पुलवराइजिंग मिल, पाउडर जहाँ बनेगा, फिर उस पुलवराइज्ड कोल को बॉयलर में जलाया जाएगा और उसमें यानी हीट एक्सचेंजर के जरिए वो हीट एक्सचेंज होगी, वो स्टीम बनेगा, हाई प्रेशर्ड स्टीम बनेगा, फिर उस स्टीम को स्टीम टरबाइन पे हिट किया जाएगा, and because of high pressured steam that will move, and because of that movement three phase AC generator will start generating electricity. Then we got into circuit breaker, setup transformer, EHV, extra high voltage switch gear, and then transmission line। ये तो एक साइड हो गया जनरेशन। अब बाकी जो स्टीम के बाद जो है वो उसकी एनर्जी कूलिंग टावर में जाती है, जहाँ पे वो स्टीम से कंडेंस होता है, लेकिन कंडेंस होने के बाद भी उसमें हीट रहती है। उस हीट को दोबारा से हम इस स्टीम एक्सचेंजर में भेजते हैं और साथ ही साथ हमें उसमें और वाटर भी भेजते हैं, इसलिए हमारे पास एक अच्छा कॉन्टिन्यूअस वाटर सोर्स चाहिए एक थर्मल पावर प्लांट के पास। सो दैट सप्लाई यानी वाटर सप्लाई हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस, एंड दैट इज व्हाई जनरली जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो किसी न किसी वाटर सोर्स के करीब होता है, नदी के किनारे या कोई बहुत बड़ी झील हो, सम अरेंजमेंट हैज टू बी देयर। उसके बाद जो उसमें फ्लू गैसेस हैं दैट हैज टू गो आउट, दैट वी हैव स्पेशल थिंग्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन, then ash handling plant, then ash stores. This is a very simplistic schematic diagram of a coal-fired thermal power plant. मेरे ख्याल से यही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखी गई हैं। Use steam is cooled down to water using cooling tower and condensers.
तो हम जो अक्सर पावर प्लांट्स को देखते हैं वो अक्सर इसमें हम कूलिंग टावर को देखते हैं. Okay, so I'll just show you. तो जनरली जब हम थर्मल पावर प्लांट को देखते हैं तो कुछ इसी तरह की चीज दिखती है. ये जो हमारा इमेज है ये अपने आप में एक्चुअल इमेज है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें वो सारी चीजें दिख रही जो अभी हमने बात की. आई होप यू कैन सी दिस इमेज. ये इमेज देख पा रहे हैं? यस सर. अब आप इसमें देखें पानी होना चाहिए, तो पानी आप देख रहे हैं इसके बगल में से नदी गुजर रही है. एंड मोस्ट यानी विजिबल थिंग विच वी सी इज कूलिंग टावर्स. ठीक है, जहाँ पे पानी ठंडा होता है, कंडेंस होता है, वेपोराइज फॉर्म स्टीम फॉर्म से वेपोराइज होता है, और ये ऊपर जो है ये असल में ये पोल्यूटेंट नहीं है. जैसे कई बार हम पोल्यूटेंट समझ लेते हैं, पोल्यूटेंट नहीं है. ये सिंपली कंडेंस हो रही है जो यानी स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है. ये चिमनीज होती है जिससे धुआं निकलता है ना. तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. कई बार हम समझे कि इससे पोल्यूशन, जाहिर बात है कुछ अमाउंट होगा, बट दैट इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन. मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इज थ्रू द चिमनीज जो बॉयलर में होती है. बॉयलर जहाँ पे होता है, बॉयलर से जो धुआं निकलता है उसके लिए चिमनीज यहाँ यूज. तो आप देख रहे हैं 3 टावर्स हैं, 3 ही ये चिमनीज हैं जो मोस्ट लाइकली हर एक पावर प्लांट मॉड्यूल के लिए यूज हुई है. एंड देन वी हैव जो इसका, अगर आप देख रहे हो इस इमेज को, तो इसमें seems it looks like a hilly area where the possibility of coal resources are there and are high. So this is how a thermal power plant looks like. एक मिनट रुकिए, जस्ट हाँ जी. ओके, चलिए ये दोनों पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स. What are the merits of coal-based thermal power plants? So one of the merits is that coal is cheap and available in abundance at present. It's a time-tested process, so no experimentation is required. यानी ये बहुत old method है, इसमें कुछ नया नहीं है, तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट यानी well tested and tried. Less space requirement as compared to hydro. जाहिर बात है इसमें आपको रिजर्वायर नहीं बनाना, तो फिर आपको जगह की कमी, जगह ज़्यादा नहीं चाहिए, और उतना खतरनाक भी नहीं है कि इसमें कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हों कि न्यूक्लियर प्लांट, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है. इनिशियल कॉस्ट compared to other conventional processes of power generation is lesser. ठीक है, कुछ और पॉइंट्स बुक्स में हैं, मैं इसमें देखता हूँ क्या क्या पॉइंट्स और इसके अलावा. The fuel used is cheaper, ये पॉइंट आ गया है इसमें. लेस स्पेस, ये भी पॉइंट आ गया है. चीपर इन इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट चीपर, ये भी पॉइंट आ गया है. चीपर इन प्रोडक्शन कॉस्ट इन कंपैरिजन विद डीजल पावर प्लांट. अगर डीजल से कंपेयर करेंगे तो इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो तब भी कम आएगा, लेकिन और चीज़ों में जैसे थर्मल, जैसे हाइड्रो से ये महंगा पड़ेगा. तो यही बात है, ये डिमेरिट्स में आ जाएगा इसके. Such plants can be installed at any place irrespective of existence of fuel. जरूरी नहीं कि वहाँ पे थर्मल कोल बेस्ड वो हो, यानी चीज़ें हों, अगर कोल नहीं भी है तब भी वो काम में आ सकती हैं. Such plants can be located near the load center, while the hydroelectric plants have essentially to be installed at sources of water
power, which is usually isolated from urban areas. Transmission costs are therefore reduced. लोड सेंटर के करीब भी हो सकता है ये, इसमें जगह की कोई खास कैद नहीं है कि यहीं पे ही होना चाहिए. Able to respond rapidly changing load without difficulty. ये एक अच्छा पॉइंट है जो इसमें नहीं आया है कि लोड के साथ इसके पावर को ऑन और ऑफ रैपिडली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रो न्यूक्लियर. ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है. स्टीम इंजन एंड टर्बाइंस कैन वर्क अंडर 25% ऑफ ओवरलोड कॉन्टिन्यूअस. ओवरलोडिंग पे 25% तक की ओवरलोडिंग पे काम कर लेते हैं. तो यानी जो रिजर्व की जो कंडीशन है, तो अगर आपका सिस्टम ओवरलोड भी हो जाता है so not a big issue. A portion of steam raised can be used as process steam in various industries. यानी जो स्टीम बचा हुआ स्टीम है उसकी हीट को हम पेपर मिल, टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल, रिफाइनरीज, केमिकल वर्क्स में भी यूज कर सकते हैं, जिसे को जनरेशन कहा जाता है. या इसको यानी एक प्रोसेस प्लांट और एक एक्चुअल पावर प्लांट दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में भी चल सकते हैं. डीमेरिट्स, हाई मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट. ठीक है, पानी है हर जगह और पानी जो है आप जानते हैं कि चीज़ों को गला देती है और धीरे धीरे इट ईट्स अप द आयरन और अदर इक्विपमेंट्स. और क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और गैसेस हैं, धुआं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए. ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई इस वजह से है कि कोल को लाना है एक जगह से फिर उसको यूटिलाइज करना है. दूसरा ये है कि पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमने जो बात की थी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू फ्यूम्स एंड रेसिड्यू फ्रॉम पोलराइज्ड फ्यूल्स. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ह्यूज क्वांटिटी. अच्छी खासी अमाउंट में पानी की ज़रूरत है और जैसे मैंने कहा वाटर बॉडीज के करीब हो गए. प्लस ये कंटेमिनेट भी कर सकती हैं अगर बहुत अच्छे से उसको मैनेज नहीं किया गया. और हमारे यहाँ जानते हैं आप, चीज़ों को हर चीज़ के शॉर्टकट बना लिए जाते हैं और जो एक करप्शन की वजह से भी जो है प्रोसेस तो होता है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अक्सर जो है जो नदियाँ जुड़ती हैं किसी थर्मल पावर प्लांट से, तो वो नदियाँ ओवर द पीरियड जो है बहुत कॉन्टेमिनेट हो जाती है. तो ये इसका डिमेरिट है. हैंडलिंग ऑफ कोल एंड डिस्पोजल ऑफ एश इज क्वाइट डिफिकल्ट. ट्रबल्स फ्रॉम स्मोक एंड हीट फ्रॉम द प्लांट. With the increase in operating temperature and pressure, the plant cost increases. अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर उसी हिसाब से इक्विपमेंट्स चाहिए, फिर वो इंक्रीज होता है प्लांट कॉस्ट. इट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर इरेक्शन एंड पुट इनटू एक्शन. एक काफ़ी वक्त लगता है इसको आइडिया से रियलिटी में लाने में, यानी उसको बनाने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एज कम्पेयर टू हाइड्रो में और ज़्यादा होता है. बट कंपेयर टू डीजल, इवन न्यूक्लियर, ये उतना टाइम नहीं लगता है इसको इरेज करने में, इरेक्ट करने में. एफिशिएंसी फॉल्स रैपिडली बिलो 75% ऑफ द लोड. अगर 75% से लोड कम है तो इसकी एफिशिएंसी तेजी से घटती है, कम होती है. एंड इट्स कॉस्टलियर इन ऑपरेटिंग कॉस्ट इन कंपैरिजन विद हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर. तो ये इसके डिमेरिट्स हैं. ये एक और पॉइंट है जो इसमें आगे, क्लोरोफिक वैल्यू जो इंडियन कोल की है वो बहुत अच्छी नहीं है. इसीलिए आप जानते होंगे कि हालांकि हमारे पास कोयला बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा है मुराद अच्छी तादाद में है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, फिर भी बहुत सारे पावर प्लांट उससे बचते हैं. उसकी वजह यह है कि उनको कहा जाता है कि आप इससे ज़्यादा गैस नहीं फैला सकते. यानी जिस तरह से कंट्री के ऊपर एक कैपिंग है कार्बन क्रेडिट की, उसी तरह से एक कार्बन क्रेडिट की कैपिंग थर्मल पावर प्लांट्स पे भी होती है. तो वो अगर कम क्लोरोफिक वैल्यू का कोयला लेंगे तो उनका प्रोडक्शन कम होगा और धुआं ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनकी जो लिमिट है कार्बन क्रेडिट की वो जल्दी ही एक्सपायर कर जाएगी. इसलिए वो चाहते हैं कि हाई क्लोरोफिक वैल्यू पर कोल लिया जाए और इसलिए उन्हें सस्ता पड़ता है अगर वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं.
उन कोयले के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा अच्छी है इंडियन कोल से, और वो इकोनॉमिकली वायबल और फिजिबल होते हैं। सो आप जानते हैं कि हालांकि ज़्यादातर कोयला हम यहीं से मंगाते हैं इंडिया से, बट एक परसेंटेज है, गुड अमाउंट ऑफ परसेंटेज, अराउंड 20 to 30%, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर इस वजह से नहीं है क्योंकि जो एनर्जी डिमांड है उसका 80% जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंपोर्ट होती है, और उसमें कोयला भी एक कंट्रीब्यूटर होता है, हालांकि कोयला हमारे पास है। रीज़न जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ऐश हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐश हैंडलिंग अपने आप में एक प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, और ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ जनरेटेड पावर टू लोड सेक्टर इनवॉल्व्स लार्ज। इसमें अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, वी आर मोस्ट वेलकम। You want to ask anything? You want to add anything? You are most welcome. सर इंपोर्ट करने से अच्छा सर हम बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंपोर्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कर सकें। बट रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक ही इशू है कि वो बल्क पावर जब आपको जनरेट करना है तो उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। आपसे मैं एग्री सेंस में करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक को पार्टिसिपेट करने दे या उसको इनकरेज करे कि अगर लोग खुद पावर जनरेट करें अपने छतों पे, अपने पार्किंग्स में, अपने जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बिल्डिंग्स पे, जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनकी बिल्डिंग्स पे, उनकी पार्किंग पे, जो भी उनके पास जगह है, और वो मैं समझता हूँ अच्छा खासा है। अगर उसमें इस तरह से इनकरेज किया जाए कि आप अगर जनरेट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कुछ हेल्प करेगी, तो एक अच्छा खासा हम सोलर एनर्जी, सोलर फोटोवोल्टेइक जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या एकदम से ये चीज़ हो पाएगा, ये थोड़ा सा अपने आप में एक इशू है। यानी क्या गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में सोच रही है? अगर गवर्नमेंट एक प्लान करे कि भाई हम अगले 10 सालों में जो भी इम्पोर्ट्स हैं उसको बंद कर देते हैं, तो उसी हिसाब से एग्रेसिवली हमें प्लान करना पड़ेगा, लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा और प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी। I myself believe that any country for that matter, including India of course, have enough of resources to be energy independent. बट उसके लिए एक विल चाहिए, और कहीं ना कहीं जो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उसके लिए एक अल्टरनेटिवली जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसको उसी हिसाब से बूस्ट देना पड़ेगा। तो अब बूस्ट देने में ये एक कॉन्स्ट्रेंट ये है कि जब हम बूस्ट देंगे तो ये एक दिन का मसला तो है नहीं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ईयर्स, डिकेड्स। तो जब तक वो होता है तब तक तो हमें ये इंपोर्ट्स को जारी रखना ही पड़ेगा। यानी एक स्टैगर्ड अंदाज में एक चीज़ को ऊपर बढ़ाया जाए और दूसरी चीज़ को कम किया जाए, ऊपर बढ़ाया जाए और दूसरी चीज़ को कम किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ओवर अ पीरियड वी कैन बी एनर्जी इंडिपेंडेंट। और ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी यानी इनकरेज किया जाए जिससे लगे कि हम, जैसे मैंने कहा, जैसे हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या जो हमारे शी शोर्स हैं, जितने भी शी शोर्स हैं, तो उसमें हम जो ओशन एनर्जी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, अब जाहिर बात है हम जानते हैं तीनों तरफ से हम समंदर से हमारे पास अवेलेबल है शी शोर, उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उसको टाइड फॉर्म जो होता है उसको एनर्जी कर सकते हैं। रन ऑफ द रिवर, जो समंदर के जो पहाड़ों से जो पानी गिरता है और वो जो समंदर में मिलता है, उसको रास्ते में रन ऑफ द रिवर बगैर उसको रोके हुए उसके मूवमेंट की को यूटिलाइज करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं हमारे,
तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज इट टेक्स लॉन्गर प्लानिंग एंड स्ट्रिक्टर एग्जीक्यूशन। और हमारा शेयर बढ़ भी रहा है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं अफान? सर जामिया में भी तो सर लगे सोलर पैनल छत पे? हाँ लगे हुए हैं सर तो कितनी परसेंटेज सर आता है उससे? क्योंकि सर लाइट भी चली जाती है कभी कभार क्लास के बीच में, तो सर उसमें उस टाइम उनमें 2.5 मेगावाट है अभी तो, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 2.5 मेगावाट का मतलब आप समझिए कि अगर 2.5 किलोवाट एक आदमी का वो हो कंज्यूमर, तो 1000 लोगों को आप दे पाएंगे सप्लाई। लेकिन ये 2.5 इंस्टॉल कैपेसिटी है, और जो यूज़ होता है वो 20% ही होता है, खासकर सोलर में, सोलर फोटोवोल्टेक में, क्योंकि हर वक्त तो वो बिजली जनरेट करती है, तो इस हिसाब से वो कम हो जाता है। सो द पॉइंट इज इट इज़ ऑफ कोर्स क्या कहते हैं सर, encouraging step, but that has to be done at a larger level। जहाँ भी हम कर सकते हैं वहाँ हमें करना चाहिए, एंड यानी ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी इनकरेज करना चाहिए, सब्सिडाइज करना चाहिए, तो ये मुमकिन है। इट इज़ पॉसिबल फॉर इंडिया टू हैव मोर फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। अभी भी जो इंस्टॉल कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ा है वो इंस्टॉल कैपेसिटी में बढ़ा है। इंस्टॉल कैपेसिटी आप समझते हैं कि आपने, जैसे मैंने अभी बताया 2.5 मेगावाट, तो ये इंस्टॉल कैपेसिटी है, जबकि इसकी असल यूसेज 0.2 है, यानी प्लांट यूज फैक्टर जो है वो 0.2 है, सिर्फ 20% ही यूज हो पाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक मसला यह है कि वो काउंट करने के में तो लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन प्लांट यूज फैक्टर औरों के मुकाबले बहुत कम होता है। ठीक है, सी शोर्स में इंडिया के विंड स्पीड अच्छी खासी है। ऑफ शोर विंड पावर प्लांट्स के बारे में सोचा जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। समंदर के ऊपर आप खड़ा कर दीजिए अपने टावर्स बगैर पिलर्स के, देयर आर टेक्नोलॉजीज, वो यूज हो सकते हैं। टहलते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है। सब पॉइंट इज एज आई सेड, स्ट्रिक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स और इनकरेजमेंट देंगे तो ये हो सकता है। और कोई सवाल? Sir, in thermal power plant, are we not using precipitators to avoid pollution? Yeah, definitely we are using it, but even after that, ये सब होने के बावजूद भी जो मैंने इसमें बात रखी थी, 60% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंट्रीब्यूटेड बाय थर्मल बेस्ड पावर जनरेशन। तो ये है अब एक फैक्टर है, इस अगर नहीं होता तो और भी परसेंटेज बढ़ जाता, इन सब के बावजूद भी है। और कोई सवाल? तो ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, और